Welcome to Ek Samvad at Arunimankuran. Today we are in conversation with Mr. Sanjay Deshpande on the occasion of International Yoga Day about the benefits of yoga for students. Our guest, Mr. Sanjay Deshpande, is Head of Department Physical Education, Bhavans BP Vidya Mandir, Trimurti Nagar, Nagpur. A warm welcome to you, sir. Thank you for joining us. Thank you very much. A word about Arunimankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunimankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact, and that's what inspires us to keep going. So International Day of Yoga aims to raise awareness worldwide about the many benefits of practicing yoga. The draft resolution establishing the International Day of Yoga was proposed by India, endorsed by a record 175 member states. The proposal was first introduced by Prime Minister Shri Narendra Modi in his address during the opening of the 69th session of the General Assembly, in which he said, "Yoga is an invaluable gift from our ancient tradition. Yoga embodies unity of mind and body, thought and action, a holistic approach that is valuable to our health and our well-being. Yoga is not just about exercise. It is a way to discover the sense of oneness with oneself, the world, and nature. Recognizing its universal appeal, on 11th December 2014, the United Nations proclaimed 21st June as the International Day of Yoga by Resolution 69-131. The resolution notes the importance of individuals and populations making healthier choices and following lifestyle patterns that foster good health. So the theme for 2025 is Yoga for One Earth, One Health. This year marks the 11th International Day of Yoga with the theme Yoga for One Earth, One Health, which echoes the vital truth. Personal wellness and planetary health are inseparably linked. Yoga strengthens the body, calms the mind, and fosters a heightened sense of awareness and responsibility in daily life. Today we are talking to Shri Sanjay Deshpande about the importance of yoga for students. So thank you for joining us, sir. I'm so grateful that you took time and agreed to do this samvad with us. What is, in your perception, the role of yoga in the life of a student? Madam, yoga is a very important factor in students' day-to-day life Hmm. because I am dealing with the students since 1997 in Bhavans. Mm-hmm. Okay, so nowadays the behavior of the students is very aggressive. There are so many reasons that definitely we will not discuss over here. But now it is a general phenomena of all the students. The aggression, then stressful life, Yes. then bad relation with the peer group, Mm-hmm. then not accepting things easily by their parents. Hmm. So these are their problems which we are facing. Yes. And being these students, Mm-hmm. they are the tomorrow citizen of our India. Yes. So it's our responsibility to make them aware Mm-hmm. about the yoga and yogic activity in and importance of that in day-to-day life. Yes. So yoga should be a daily routine, not only on once in a year on the Yes. 21st June Hmm. and celebrating like any mahotsav. Mm-hmm. बट ये जो योग है ये डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए जैसे हम खाना खाते हैं श्वास लेते हैं अभ्यास करते हैं लाइक दैट दिस शुड बी द part and parcel of our regular routine and it's our responsibility Hmm. as a parents because जो हम करते हैं वही बच्चे करेंगे Very true. हम जो बोलेंगे वो बच्चे नहीं करेंगे because they don't know and we know Hmm.
So filling up this gap, we should be a role model for them. हम्म, सो इसलिए योग का इम्पोर्टेंस बहुत है उनके लाइफ में, सबके लाइफ में. हम्म, और स्टूडेंट जो, जैसे मैंने बताया कि कल के वो भावी नागरिक है और हम्म, हमारा एक समर्थ भारत बनना बहुत आवश्यक है. आज बिल्कुल. की स्थिति हम जानते हैं. बच्चे बिकॉज ऑफ दिस सीबीएसई सिलेबस वो इंजीनियर बनेंगे ही, डॉक्टर बनेंगे ही, बट हम्म, क्या वैल्यूज उनके पास रहेंगे? क्या हम अच्छा उनका अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, उनका ग्रूमिंग अच्छा हो रहा है? हम्म, और जैसे भी जो सोसाइटी के मेंबर बनेंगे, हम्म, तो फिर वो खराब अगर बनेंगे तो उसकी चार जो उंगलियां है वो हमारे तरफ भी बताएंगी कि समवेयर वी वर रॉन्ग उनके अपब्रिंगिंग में. हम्म, सो योगा एक तो एक महज कारण है, बट वो जैसे आपने बताया आपके इंट्रोडक्शन में कि वो सही में एक वैल्यूज है. इट्स अ वे ऑफ लाइफ. It is not, I don't think that it is only activity to celebrate on one day, like बिल्कुल. International Yoga Day, or it should not be a part of only syllabus in the school. हम्म, बट जैसे घर के अहम त्योहार जो होते हैं या रूटीन हम बोलेंगे, हम्म, लाइक दिवाली, इट शुड नॉट बी सेलिब्रेट ऑन द 1 day or 4 days, रेगुलर बेस पे. एंड दैट इज वाई it has been incorporated in the syllabus also, in NCRT or in the state board also. So yoga or yogic activity plays vital role in building the career and giving shape up to all the students. So this is my opinion for this activity. क्योंकि सर बच्चे हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि टाइम नहीं है हमारे पास. तो अगर हम्म हम हम्म हम्म. बताना चाहें कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका फिजिकल एंड मेंटल दोनों कॉम्बिनेशन है, इट्स अ ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन Yeah. दोनों, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए. तो हम्म. आप कुछ ऐसे सजेशंस दे सकते हैं क्या कि जो बच्चे उसको इनकॉर्पोरेट कर पाए अपनी लाइफ में एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ एकदम योगा. सिंपल. जो मैं मेरे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय बोलता हूँ कि आपको कोई बड़ा काम करना नहीं, कोई क्लब ज्वाइन करना नहीं, कोई योग सेंटर ज्वाइन करना नहीं. अपने ही घर में हम्म, इवनिंग में आपको टाइम मिलता है या मॉर्निंग में अगर आपको टाइम मिलता है, तो यू सीट एट वन प्लेस. हम्म, हर एक के घर में कोई ना कोई भगवान की जगह होती है एज पर देयर रिलीजन. और रिलीजन आपको प्रार्थना, धर्म और भक्ति के ओर ही ले जाता है. तो एज पर योर रिलीजन यू सीट देयर. हम्म, उसमें पवित्र होना जरूरी है, प्योरिटी होना जरूरी है. सिंपली यू सीट, अगर होता है तो यू सिट इन द पद्मासन और इन द सुखासन. हम्म, सिंपल स्टेज है योगा की जो पहली है, जो सादी बैठक हम बोलते हैं. यू क्लोज योर आईज. हम्म, Okay, then keep your wrist on your knees, हम्म, gently close your eyes, and remember your God as per your religion, as per your choice. और अगर आपको गॉड का अगर कुछ है नहीं है, तो पेरेंट्स आर योर गॉड, योर गुरुज. हम्म, आपके पेरेंट्स का चेहरा सामने रखो और 5 मिनट्स जस्ट एक जगह आंखें बंद करके यू शुड सीट डेली एंड इंक्रीज दैट स्पैन 5, 6, 7. बिकॉज बड़े बड़े लोगों से ये सीटिंग होता नहीं है. अ मोमेंट यू क्लोज योर आईज, सडनली 100 of thoughts entered in your mind and they disturb you. हम्म, So this is the position, हम्म, this is not the activity. हम्म, योग करने के लिए आपको जो एक बेस चाहिए वो है तुम्हारा ध्यान. हम्म, और अगर ध्यान तुम पूरा एकत्रित करोगे तो इट विल हेल्प टू इंक्रीज योर कंसंट्रेशन. हम्म, कंसंट्रेशन जैसे भी बढ़ता है तो यू विल बी फोकस्ड. If you are focused, then you can concentrate on your study. यस. For example, if you sit for 2 hours, so maximum if you focused on your activity, so अच्छे results उसके आपको मिलेंगे. हम्म, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा तो आपके पीयर ग्रुप के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग आपकी होगी. आपके पेरेंट के साथ बिहेवियर जो इसके पहले अच्छा नहीं रहता था, बिकॉज उनका एक्सेप्टेंस लेवल बहुत कम है. बिल्कुल. पेरेंट्स ने कुछ बोला कि ये मत कर तो उनको वही करना है. टीचर ने बोला ये मत करो तो डेफिनेटली दे वांट टू डू दैट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड. सो इट इज अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम्म, पेरेंट्स एंड टीचर्स और सोसाइटी, कि उनको मेक देम सिट फॉर 5 मिनट्स. हम्म, उनको लेके आप बैठिए. हम्म, 5 मिनट बैठना कोई बड़ी बात नहीं. 5 मिनट्स दे कैन स्पेयर फॉर देम सेल्फ. और ऐसा ही धीरे 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 यू इंक्रीज दैट स्पैन. और डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा कि अ मोमेंट यू क्लोज योर आईज, देयर इज साइलेंस. थॉटलेस माइंड का जो एक स्टेज है
वो धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा। वो इतना आसान नहीं है, बड़े बड़ों के लिए आसान नहीं है, बट उसकी शुरुआत आपको घर से ही करनी है। हम्म, आज का जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, आज का जो सोशल मीडिया का अवेयरनेस है, जो उनको एक्सपोजर मिल रहा है, उनको जो बच्चे ऑलरेडी काफ़ी शार्प है, टेक्नो सेवी है, उसमें उनके माइंड में बहुत सारा एक कचरा है। वो अगर हमको निकालना है तो उनको चिंतन, मनन, ध्यान और मेडिटेशन इसके तरफ लेके जाना, ये हमारा दायित्व बनता है एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर। सो आई वुड सजेस्ट कि शुरू में 5 मिनट का एक्सरसाइज डेली, बट हम्म, आज किया, 2 दिन किया, बोला इसलिए क्या नहीं, डेली यू सिट फॉर 5 मिनट्स। और मुझे बच्चे आने के बाद बोलते हैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ कि सर यस नाउ वी आर एंजॉयिंग। हम्म, और धीरे धीरे ऐसा होगा तो उनका बिहेवियर अच्छा होगा, उनके वो नेचर में जाएगा। वो 2 घंटे का स्टडी जो पहले 4 घंटे में बैठ के भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कंसंट्रेशन उनका है, फोकस्ड हो गए हैं। हम्म, और सादे पद्मासन में या सुखासन में बैठ के उनको शुरू करना है, हम्म, तो उसमें उनका ध्यान जो है, वो जो स्पैन है बैठने का, वो हम कितना अच्छे से बढ़ाते हैं, उनको मॉनिटरिंग हम करें। हम्म, सब पेरेंट्स अपने आप में उनको साथ में, जैसे हम टीवी साथ में बैठ के देखते हैं, तो उनको मेडिटेशन का भी एक होना ज़रूरी है, एक मेडिटेशन रूम घर में होना ज़रूरी है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म देना हमारी जिम्मेदार, क्योंकि स्कूल के हेक्टिक शेड्यूल में ज़रूरी नहीं कि योगा का क्लास योगा के लिए ही होगा। बहुत बार वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू गेम्स, हम्म, क्योंकि बच्चों को गेम बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। हम्म, बट हर एक स्कूल में सिलेबस में योगा है, हम्म, बट उसमें उतना समय मिलता नहीं, काफ़ी सारा शोर होता है, फिर वो शूज़ पहन के आते हैं, फिर वो तुरंत रिमूव करके बैठना है, उनके अलग अलग ये है। और वहाँ कैसे 40 बच्चे साथ में हैं, हम्म, लोनली इफ़ यू सिट एट योर हाउस, तो उसका एक इम्पैक्ट आपको अच्छा मिलेगा, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। इसलिए 5 मिनट का जो एक्सरसाइज मैं बताती हूँ, वो मैं सबको इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि make sure that it should be a part of your routine, not only once on the 21st June हम्म, and celebrate International Yoga Day. This is not our this thing, and we cannot fulfill our goal. हमको समर्थ भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है और सशक्त भारत बनाना है। तो ये जो युवा पीढ़ी अगर सशक्त होगी, ये इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, बट अगर माल प्रैक्टिस करके पैसा कमाएंगे तो क्या फायदा। वैल्यूज़ थ्रू योगा हमको उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जैसे हम कैच देम यंग बोलते हैं, स्पोर्ट्स में भी हम बोलते हैं कि कैच देम यंग, जब यस, वो एकदम रॉ है तभी हम उनको करना ज़रूरी है। तो योगा पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और मैं धन्यवाद तो इसलिए दूंगा अपने प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसको एक राष्ट्रीय महोत्सव के तौर पे सेलिब्रेट करना शुरू किया है, हर ऑफिस में, हर स्कूलों में, और ये आज 11वां साल हम उसका मना रहे हैं। आपने बहुत वैल्यूबल बातें शेयर की सर। जैसे हम लोग सोचते हैं कि छोटे हैं, अभी बच्चे छोटे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस एज के बच्चे योग करना सीख सकते हैं? व्हाट इज द अर्लीस्ट? मैडम, थर्ड फोर्थ के स्टैंडर्ड के बच्चों से लेके यानी 7-8 साल के आसपास उनको, क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड वगैरह वाले दे कैन नॉट सीट ऑन वन प्लेस फॉर मोर टाइम, और उनको उसका इम्पोर्टेंस भी उतना नहीं आता है ना, एज पर देयर एज इज कंसर्न। बट डेफिनेटली थर्ड स्टैंडर्ड इज एक रीजनेबल एज है उनका, कि उसमें हम उनको पकड़े, थर्ड फोर्थ तक उन पे वो हम एक्सरसाइज करें, फिफ्थ सिक्स में वो खुद ब खुद उसके लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे कि नहीं सर हमको उस एक्टिविटी करना है। क्योंकि योगा हमको केवल फोकस्ड होने के लिए नहीं बोलता है, तो इट्स अ मीडियम ऑफ ऑलराउंड डेवलपमेंट। बिल्कुल। इसमें हमको क्या क्या मिलता है, हमको काफ़ी सारे डिसीजेस पे इस पे बेनिफिट मिल रहा है। हमको डाइजेशन सिस्टम अच्छे करने के लिए हम वज्रासन कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन के लिए हम शीर्षासन कर सकते हैं, भलाई वो छोटे बच्चे के लिए एडवाइजेबल अभी नहीं, हम्म, बराबर है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काफ़ी सारे यौगिक एक्टिविटी हम उनको करा करा सकते हैं, हम्म, ठीक है। बाद में बैक एक का उनका रिलीफ जो है वो उसमें मिल सकता है। काफ़ी सारे बड़े लोगों के लिए भी वर्टिगो के जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम्म, है ना, नर्वस सिस्टम में आने वाले काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, डिसीजेस हैं, वो योगा के माध्यम से हम उसको दूर कर सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज की जनरेशन में हम जो स्कूल में बच्चे देखते हैं, तो काफ़ी सारे स्पेक्ट के साथ हैं, हम्म, उनको आइज़ के काफ़ी सारे प्रॉब्लम है। तो योगा में त्राटक करके जो एक विधि है, वो अगर हम रेगुलर करें तो उसमें हमारे चश्मे भी कम हो सकते हैं, क्योंकि वो छोटा ग्रुप है, वो जल्दी उसमें मिक्स हो सकते हैं। तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जो है, हम्म, और उस एज के जो बच्चे हैं, वो
अपने घर से ही पेरेंट्स उनको शुरू करें, और स्कूल में तो हम लोग उनको करते हैं, बट स्कूल का रूटीन ऐसा होता है कि वी हैव टू परफॉर्म सो मेनी एक्टिविटीज़, गैदरिंग है, पिकनिक है, क्लासेस है, एग्जामिनेशन है, इन्विजिलेशन हम्म। है ना। तो स्कूल में इतना फोकस हम नहीं कर पाते, बट घर से ही शुरू होना चाहिए, क्योंकि घर एक सबसे पहला स्कूल है, और इसलिए हम माता पिता को गुरु मानते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि केवल योग करना दादा दादी का काम नहीं, बड़ों का काम नहीं, ये बच्चों से शुरुआत करना है, क्योंकि आज हम जिस उम्र में हैं, एक 50-40 प्लस में, तो हमारा तो जो बन गया वो बन गया है, बट बनना है जो इन लोगों को बनना है, जो हमारी जनरेशन है, जिसके लिए आज का हमारा टॉपिक है कि स्टूडेंट्स। और आज का लाइफ इतना स्ट्रेसफुल है कि उनको केवल योगा ही एक उपाय है। हम्म। अगर उनका मेंटल स्टेटस स्टेबल नहीं है तो काफ़ी सारे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, नशा की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, कम मेहनत में ज़्यादा पैसा मिलाने के लिए वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया में वॉट एंड नॉट वो इजीली अवेलेबल है, जो नहीं होना चाहिए, वो उसके लिए हम वो नहीं रोक सकते, बिल्कुल। बट वी कैन रिस्ट्रिक्ट आवर सेल्व्स। और ऐसे समाज के सब लोगों ने बोला कि हम चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर हम हमारे घर से शुरू करें और सबने ऐसा किया तो डेफिनेटली सोसाइटी का आज का जो लेवल है, हम्म। क्योंकि हम वो हिसाब से योगा को देखते हैं और इस एक्टिविटी को देखते हैं। यस। तो सर, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही अभी कि बच्चों की आईज में बहुत स्ट्रेन हो रहा है, क्योंकि आंखें आजकल वो इतना स्क्रीन यूज कर रहे हैं सब बच्चे। तो इज इट पॉसिबल कि आप हमको एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, ताकि जो देख रहे हैं बच्चे वो उसको फॉलो कर सकें, समथिंग, सम काइंड ऑफ या उसमें होता ऐसा है कि अगेन यू हैव टू सीट ऑन वन प्लेस, देन रेज योर वन थंब, दैट इज अ पॉइंटर, और वो आपको स्ट्रेट रखना है। हम्म। ठीक है। इसके जगह जो बड़े मैच्योर लोग हैं वो कैंडल भी लेते हैं और अंधेरे में ये करते हैं, हम्म। बट वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ हमको एक्टिविटी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो हाथ हमने अभी पहले स्ट्रेट रखा है, हम्म। मिडल ऑफ आवर आइज रखा है, इसको हम उसको राइट लेते जाएंगे, हमारी बॉडी स्टीफ है, धीरे धीरे जैसा ये पॉइंटर मैं राइट में ले रहा हूँ, तो हमको केवल आई बॉल्स उसको राइट में ले जाए। हम्म। हम्म। आई बॉल्स को हम राइट लेंगे, वहाँ पे थोड़ा देर हमको रुकना है, फिर से इसको मिडल में लाना है, सेम एक्टिविटी वी विल डू लेफ्ट साइड, हम्म। ऐसे हमको 5 to 10 टाइम्स करना है। हम्म। तो आंखों के आई बॉल की जो एक्टिविटी उनकी हो जाएगी, उसमें काफ़ी सारे जो स्क्विंट आइज वाले बच्चे थे उनको भी बेनिफिट मिलने के काफ़ी सारे केसेस डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के बाद पता चले हैं। हम्म। तो ये भी बेनिफिट उनको उसमें मिलता है। इवन रेगुलर राउंड, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, ऐसे 10-10 टाइम्स अगर आपने केवल आई बॉल को डेली अगर उसको मूव किया, तो उसका भी एक बेनिफिट, क्योंकि जो इंटरनल वेन्स है उसको एक स्ट्रेंथ मिलती है। और आजकल बच्चों को जो बिकॉज ऑफ देयर फूड हैबिट या बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रेस, क्योंकि आजकल स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, वो जो हम बता नहीं सकते, बच्चों को आ ही जाता है। टू स्टूडेंट्स, दे वे सीटिंग अलोन and I'm engaging that class. So just I sat there and asked, what happened बेटा? सर आज मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा है। मतलब फ्रस्ट्रेशन की बात है, स्टैंडर्ड फोर्थ के मुंह जबानी आज आ चुकी हैं, हम्म। तो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 प्रिंट होकर उनके मन में आएगी। तो बिल्कुल। योगा के थ्रू सबसे पहले तो मेडिटेशन, और काफ़ी सारे जैसे जॉइंट्स के लिए काफ़ी सारे योगिक एक्सरसाइजेस है। सूर्य नमस्कार एक अपने आप में पूर्ण अष्टांग योग का एक हम पूर्ण उसको रूप मानते हैं। तो ये धीरे 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 अगर हम करेंगे, और बच्चों का इसलिए कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, उनके बोन्स उस स्टेज में है कि जहाँ पे उनको डेवलपिंग स्टेज हो रही है, उनकी धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ उनकी बढ़ रही है, मसल्स बढ़ रही है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो जहाँ पे ग्रोइंग स्टेज में वो बच्चे हैं, जैसे खाना अच्छा उनके लिए ज़रूरी है, तो जो बुद्धि का जो खाना है वो हमारा योग है, तो वो देना हमको बहुत ज़रूरी है, और ऑन डेली बेसिस ये होता नहीं है, इसलिए काफ़ी सारे डिसीजेज और काफ़ी सारी जो आज सोसाइटी में, अगर ये विद्यार्थियों का अगर हम यूथ का लेवल पकड़े, यूनिवर्सिटी के लेवल के अगर बच्चे एक करें, क्योंकि वो भी स्टूडेंट्स ही, बट उनका बिहेवियर आज हम देखते हैं, ट्रिपल सीट बैठना विदाउट हेलमेट, रिस्पेक्ट नहीं पेरेंट्स को या बाकी के जो भी स्क्वेयर्स में। पहले हमारे समय ऐसा बिल्कुल नहीं था, और हम महसूस कर रहे हैं, हम्म। इवन स्मोकिंग देन ड्रिंकिंग। तो ये भी चीज़ें कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की धीरे धीरे हो रही हम्म। है। डर जो रहता है कि जो पेरेंट्स का डर या बाहर के पब्लिक का डर, वो फेयर नहीं होने के कारण, और क्योंकि ये उनका जो दिमाग है वो काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों पे दौड़ता है बिकॉज ऑफ दिस
अवेलेबिलिटी ऑफ द सोशल मीडिया, उसमें काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें जो शायद हमको हमारे ग्रेजुएशन तक कभी पता नहीं होती थी, आज 6-7 में, आज 6-7 के बच्चे इसका ब्रेकअप हुआ है, उसका ब्रेकअप हुआ है, ये बातें हम सुनते हैं स्कूल में। मतलब ब्रेकअप की ये जो कंसेप्ट जो अभी अभी हमने सुनी है 5-10 साल में, वो बच्चे अभी उनके रूटीन का एक पार्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसी जनरेशन का सही में डर लगता है, और इसमें अगर हम योगा के थ्रू अगर ऐसी कुछ एक्टिविटी ना करें कंपलसरी, तो कहाँ पे ये सोसाइटी जाएगी, और ये अपना युवा और कल होने वाला जो सशक्त एक देश है या फिर नागरिक है, तो एक अपना चिंता का विषय हो सकता है। तो आपको सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूँगा कि काफ़ी अच्छा एक विषय आपने हमको दिया है बातचीत करने के लिए। सर थैंक मुझे लगता है ये एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात उठाई है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसको एक आधार मिलेगा अगर योग रेगुलरली करेंगे, और ये हम लोग अगर क्लासरूम्स में शुरू कर सकते हैं तो क्योंकि ये बहुत बड़ी एक हमारे पास कला है बोल सकते हैं उसको, इट्स एन आर्ट ऑफ बैलेंसिंग द बॉडी एंड माइंड। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स होते हैं क्लासरूम्स में जो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके जी, लिए जी, भी जी। उनको मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाएगा अगर वो बच्चे खुद ही एक लेवल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन लेके आते हैं क्लासरूम में। तो या जैसे प्राणायाम है या ऐसे कोई आप सजेशंस दे सकते हैं, जैसे क्लास के शुरू में अगर टीचर्स थोड़ी देर के लिए इफ दे कैन स्पेयर दैट मच टाइम, थोड़ा इसके बारे में या चर्चा। इन अवर स्कूल हम असेंबली में क्या करते कि वी स्टार्ट अवर असेंबली थ्रू चैंटिंग ऑफ ओमकार। यस। ओमकार के मंत्र का उच्चारण करते समय हम हमारी असेंबली शुरू करते हैं। हम्म। तो उससे उनके जो लिप्स के वाइब्रेशन होते हैं हम्म। वो उनके नर्वस सिस्टम को पहुंचते हैं, और उनका जो एक दिन अच्छा शुरुआत होने की ज़रूरत है उसका एक हम छोटा वहाँ प्रयास करते हैं कॉमन पूरे असेंबली में। और इसके बाद भी फिर उसके बाद तो बाकी रूटीन वी हैव टू अटेंड, के बाद में फिर प्रेयर भी होगी, राष्ट्रगान भी होगा, या फिर कुछ फेलिसिटेशंस भी होंगे। बट शुरुआत हम वहाँ से डेफिनेटली करते हैं। अगर असेंबली ग्राउंड में भी नहीं है तो क्लास असेंबली वी विल स्टार्ट थ्रू ओमकार। ओमकार के कहने से वो बच्चे अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, कुछ तो भी एक अच्छी शुरुआत हम अभी हमको करना है। वो एक रिमाइंडर स्कूल की तरफ से कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलता है। अगर 1000 बच्चों को अगर हम ओंकार करने के लिए बोले तो 700 बच्चे मान लो कर रहे, 300 आज नहीं कर रहे, बट उनको देखा देखी वो भी कर लेते कि नहीं, आई हैव टू डू दिस एक्टिविटी बिकॉज इट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्कूल के तरफ से हो रही है। और बच्चे स्कूल टीचर को काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं बिल्कुल। पेरेंट्स के कंपैरिजन में। तो आप जो बोल रहे हैं सही है कि हम एक ओमकार से शुरू करें, और क्लास में क्लास टीचर जब वहाँ जाएगी तो वहाँ एक 2 मिनट का प्राणायाम, 2 मिनट का ध्यान, वहाँ नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं, शूज़ रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकेबल नहीं है। राइट। बट उनको आंखें बंद करके 2 मिनट जस्ट कूल डाउन करके बैठना है, बिकॉज क्लास टीचर इज़ अ मदर टीचर। तो वो काफ़ी एक इम्पैक्ट उन पे डाल सकती है। बिल्कुल। और धीरे धीरे उनके वो आफ्टर ऑल वो जो है एक कोरी जो पाटे बोलते हैं कि एक ब्लैंक स्लेट है, उसमें हम जो लिखेंगे वो बनने वाले हैं। तो स्कूल का इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए आज स्कूल का जो वर्क है वो नोबेल वर्क मानते हैं। उनका जो इंटेंशन है वो भी आज भी वही है, बिल्कुल। क्योंकि वैल्यूज़ हमको बच्चों को सिखाना है। सिलेबस तो बच्चे कर ही लेंगे, आज राइट। तो गूगल में और सब में सिलेबस कोई भी कर लेगा, बट व्हाट अबाउट द वैल्यूज़। यस। आपने जो बोला है कि शुरुआत हम जो बोलते हैं कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। स्कूल में बच्चे गए, असेंबली में गए, वो ओमकार से शुरू। एक किस्सा 2 मिनट 1 मिनट का मैं बताना चाहता हूँ कि महर्षि की जितनी भी स्कूल है पूरे इंडिया में, महर्षि दयानंद जी की, उनकी असेंबली, उनके असेंबली जो होती है 2-2,500 बच्चों का बड़ा हॉल है। उन्होंने हॉल वहाँ बांधा है, और सब बच्चे शूज़ रिमूव करके, और वहाँ के जो ड्रेस कोड है वो धोती पायजामा कुर्ता है टीचर्स के लिए, और बच्चों के लिए भी वैसे ही। तो वहाँ बैठ के आधा घंटा उनका प्राणायाम ध्यान होता है, और बाद में उनका फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड और एक्टिविटी शुरू होती है। ये मैंने खुद देखा है। तो आधा घंटा तो पॉसिबल हर एक के इसमें नहीं है, क्योंकि उनकी स्कूल ही महर्षि जी योगी महर्षि जी की है, तो उनको पॉसिबल है। बट वो एक अच्छा स्टार्ट लेके जब बच्चा ऊपर जाता है क्लास में, तो दिन उनका फ्रेश होता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सभी स्कूल ने एक दिशा से ये करना ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छा भी लगे,
मन थोड़ा-सा उनका शांत भी हो, क्योंकि बच्चे सुबह आते हैं, लेट उठते हैं, किसी ने दूध पिया है, किसी ने ब्रेकफ़ास्ट किया है, किसी के घर में काफ़ी सारे टेंशन्स को भी लेके आते हैं। भला ही वो छोटे बच्चे हैं, बट टेंशन्स तो है। किसी के घर में डिसीज़ है, किसी के घर में कोई गया होगा, किसी के घर में प्रॉब्लम होगा। वो सब लेके जब कॉमन प्लेटफ़ॉर्म में हम आते हैं, तो इट इज़ अवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको हम वहाँ से उठा के कुछ नया दें, ताकि उनको एंड ऑफ द डे लगे कि हाँ, नहीं मुझे स्कूल में जाना चाहिए, अदरवाइज़ आई विल मिस दैट एक्टिविटी। यानी पढ़ाना शुरू करने के पहले ग्राउंडिंग एक्टिविटी, एवरीबॉडी इज टुगेदर, तो उनका अटेंशन भी या फोकस्ड रहेगा एंड ज्यादा बिल्कुल, प्रोडक्टिव रह पाएंगे। बिल्कुल। या बिकॉज आप एक बहुत स्टूडेंट कम्युनिटी से एसोसिएटेड हैं सर, तो उनका जो सिलेबस है उसमें क्या कंटेंट इंक्लूडेड है इन टर्म्स ऑफ योग? हाँ, योग में हम सिटिंग सिटिंग आसनास, देन स्टैंडिंग आसनास एंड स्लीपिंग आसनास, ये तीनों टाइप के आसनास उनके सिलेबस में हैं, हम्म, जिनके कारण उनको फ्लेक्सिबिलिटी में डेफिनेटली ये होता है, डाइजेशन सिस्टम में उनको उसका फ़ायदा होता है। देन शवासन जब कराते हैं तो फुल बॉडी रिलैक्स उनकी होती है, पूरे जॉइंट्स उनके रिलैक्स होते हैं, और एक अच्छा उनको अनुभूति उस एक्टिविटी पे मिलती है। बट टेलिंग फ्रैंकली कि स्कूल में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि योगा के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि एक बड़े हॉल का होना ज़रूरी है। फिर हम्म, स्कूल में अगर बड़ा हॉल होगा तो उसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ भी होती हैं, काफ़ी सारे योगा क्लासेस फिर वो गेम्स में कन्वर्ट करने होते हैं। हम्म, तो स्कूल ने भी, मैनेजमेंट ने भी, या गवर्नमेंट के भी जितने भी स्कूल है, वहाँ एटलीस्ट सीबीएसई स्कूल में योगा का सिलेबस में हम करते तो भी है, बट बाकी बच्चों को योगा कितना होता है, आई हैव अ डाउट, स्पेशली स्टेट और एनएमसी के स्कूल में, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काफ़ी सारे प्रॉब्लम हैं। बट यहाँ एटलीस्ट बड़ी बड़ी रूम्स है, एयरी रूम्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो यहाँ पे वो चीज़ें हम करते हैं, और सिलेबस में उनका समावेश है कि ये इनको इस महीने में कराना है। सीटिंग पे हम ज़्यादा जोर देते हैं क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी, बट बहुत सारे 6-7 स्टैंडर्ड के ऑनवर्ड्स तो पश्चिम तानासन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, बिकॉज उसमें आपको पूरे नीचे बैठ के पैर स्ट्रेट करके यू हैव टू टच योर फोरहेड टू योर नीज विदाउट ब्रिंगिंग योर नीज अप। हम्म, तो उसमें पूरा बैक बोन जो है वो अगर उतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो बच्चे कर नहीं पाते, उनको वहाँ बैकएक शुरू हो जाता है। तो ऐसे सारे एक्टिविटी और पूरे वो सिलेबस में उनका हमने इंक्लूड किया है। सर आपको इस चीज का अनुभव होगा, जैसे बच्चों को कोई भी चीज समझाना उनके एंड स्पेशली समथिंग लाइक योग, तो जो उनकी रेजिस्टेंस है, जिम जाने के लिए वो तैयार रहते हैं लेकिन योग करने के लिए उनको बहुत रेजिस्टेंस है, तो आप किस या तरीके से हैंडल करते हैं इस चीज को? इन उनको हम जिम का या फिर ये जो एरोबिक्स की एक्टिविटी, एक फैड आ गया है नागपुर में या सब जगह, कि म्यूजिक लगा देना और उस पर डांस करना, फिर वो स्वेटअप हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें की, बट एट दैट टाइम दे आर कनेक्ट विद दैट म्यूजिक ओनली। हम्म, म्यूजिक बज रहा है, वो कनेक्ट हो रहे हैं और उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, हम्म, बरोबर है। वो उनको थोड़ा ग्लैमरस लगता है, उनके पसंद का म्यूज़िक है, वहाँ बीट्स है, और म्यूज़िक ऐसी ताकत है म्यूज़िक में कि म्यूज़िक लगा दो तो आज मिडल एज के या जो पेरेंट्स है या फिर जो ग्रैंड ये है पेरेंट्स है, उनके भी पैर थोड़े हिलने लगते हैं, बिकॉज इट्स द पावर ऑफ दैट म्यूज़िक, हम्म, बरोबर है। उसका इन लोगों ने एक प्रोफेशन बनाया है। हम्म, जिम का काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट उन्होंने किया है, हम्म, बड़े बड़े बाइसेप बड़े बताना, है ना, जो फॉरेन के ये है जिम है, वो वहाँ पे उन्होंने इंडिया में लाके उसको एस्टेब्लिश किया है। वहाँ पे केवल मतलब जो मेडिटेशन और ध्यान की जो चीज़ है वो वहाँ से हट गई है, केवल फिजिकल उसमें फिटनेस तुमको आता है, बट फिजिकल फिटनेस ओनली ज़रूरी नहीं है, एक कॉम्बिनेशन दोनों का है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं हमारे बॉडी को कि इट इज़ अ साइको फिजिकल यूनिट। हम्म, मैन क्या है कि साइको फिजिकल यूनिट है। हमको साइकोलॉजी भी देखना है, मेंटल हेल्थ भी देखना है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी देखना है, एनवायरमेंटल हेल्थ भी देखना है, और तुम्हारी बॉडी की भी हेल्थ देखना है। वहाँ केवल एक एस्पेक्ट जो है वो फुलफिल होता है। फिर वो फूड सप्लीमेंट बेचते हैं, उसमें क्या क्या बेचते हैं, थोड़ा सा उनको बॉडी शेप अप होने के लिए बेनिफिट भी होता होता होगा यूथ को, आई डोंट नो, क्योंकि हम तो कभी सजेस्ट नहीं करते। बट बच्चों का आप जो बोल रहे सही है कि उनका अट्रैक्शन वहाँ है, और आजकल इन बच्चों की मम्मियाँ भी काफ़ी सारी जिम में जाते हैं तो बातें वही होती है कि अभी मैं जिम से आई, अभी मैं जिम से आई।
योगा के लिए उतना वो ध्यान देते नहीं, क्योंकि वहाँ पे वैसे बोरिंग उनको लगता है कि वहाँ जस्ट यू हैव टू सिट एंड डू फ्यू एक्टिविटीज़। वहाँ पे कैसे थोड़ा शोर है, थोड़ा सा उनके मनपसंद का म्यूज़िक है, तो उनको लगता है कि वे ये बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही ज़रूरी है, भला योगा करते समय तुमको स्वेटिंग आ रहा है ऐसा नहीं होगा, बहुत थके ऐसा भी नहीं होगा। अगर आपने बट प्रॉपर डायरेक्शन में किया तो आप टायर्ड भी होते हैं उसमें, और शवासन के जैसे आसन में आप रिलैक्स भी होते हैं। हम्म, इसलिए योगा और जिम, इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो योगा अपना पुराणों में, वेदों में बताई हुई विधि है, और जिम को हमने उसको अभी जोड़ तोड़ के लाया है। वो हम्म, आधा योगा भी उसमें सिखाते हैं, आधा जॉगिंग भी सिखाते हैं, फिर एरोबिक्स का भी काफ़ी ये है, हम्म, लाइट्स का भी इफेक्ट्स उसमें है। तो उसमें वो एक पार्ट ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी बेस्ड है। या हमको स्पिरिचुअल बेस पे बच्चों को बनाना है, हम्म, फिजिकल तो बनेंगे बनेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जो भी हमको अपना ये मिला है, बिल्ट मिला है, वो अपना हेरिडिटरी के हिसाब से मिला है। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि बहुत काजू हमने सुबह से खाया तो हमारे 10 किलो वेट भी बढ़ गया और हम एकदम, हमारे बाइसेप ट्राइसेप बहुत मजबूत हो गए। अगर वो नहीं नहीं होना है तो नहीं होने वाले। हम्म, बट बुद्धि की जो मसाज करनी है, जो मेंटल हेल्थ को हमको मेंटेन करना है, वो हम योगा अगर नहीं करें तो वो नहीं होने वाला है। हम जिम जाए ना जाए चलेगा, बट योगा करना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। आई होप जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, दे विल बेनिफिट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, क्योंकि हमारे देश की डेफिनेटली। धरोहर है और हम ही उसको छोड़ देंगे तो फिर इट्स नॉट राइट। दुनिया के लोग अलग अलग फॉर्म्स में योगा को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग को स्पेशली स्कूल से शुरुआत करनी चाहिए। तो बिफोर वी कंक्लूड बिल्कुल। सर, प्लीज शेयर अ मैसेज फॉर एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग इन। सभी पेरेंट्स कम्युनिटी, स्टूडेंट्स, और जैसे मैंने शुरू में ही बोला है कि इट शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन। और हम बच्चों को वो साथ में लेके उंगली पकड़ के, क्योंकि वो बच्चा है, आज यूथ भी बोलो तो उसको उतनी मैच्योरिटी लेवल नहीं है। हम्म, तो मंकी सी मंकी डू, ये जो एक सिद्धांत है, हम्म, हम देखेंगे तो करेंगे, हम्म, हम बोलेंगे तो नहीं करेंगे। सही बात। हम बोलेंगे बच्चों को कि तू कर और मैं टीवी देखता हूँ, तो रिलेट नहीं होने वाले। अब आप उनको लेके बैठो, फिर उनको लगता है कि नहीं, पापा इज ऑल्सो सिटिंग, मम्मी इज ऑल्सो सिटिंग, माई ग्रैंड पा इज ऑल्सो सिटिंग, सो इट इज समथिंग वेरी स्पेशल एंड आई हैव टू डू इट। यस। और उनके मन मर्जी का तो शुरू में नहीं रहेगा, धीरे 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 हमको उनको इनकलकेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि ये पूरे वीक का तुम्हारा एक प्रोग्राम होना चाहिए। सुबह अगर सबको वक्त नहीं मिलता है तो भोजन के पहले, इंस्टेड ऑफ सीइंग टीवी टुगेदर, एक 10 मिनट का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर आप रिलीजन के हिसाब से आप आपके कुछ भजन बजाइए, अगर आपको अच्छे लगते हैं। नहीं तो 10 मिनट अपना शांत रहो। बिल्कुल। बट आजकल ये सीन हमने देखा है कि 10 मिनट अगर हम घर में शांत है और 4 मेंबर है तो डेफिनेटली उनके हाथ में मोबाइल है एंड दे आर डूइंग समथिंग, बहुत। ओनली वन फिंगर इज एक्टिंग। हम्म, तो इसके लिए हम भी काफ़ी मात्रा में ज़िम्मेदार है, जो एडल्ट है, कि हमको भी धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं दिन भर का अगर थक के आया हूँ, तो मुझे भी मेरा कुछ तो भी एक स्पेस चाहिए। तो राइट। फिर मैं, मेरा स्पेस मैच्योर्ड है इसलिए मेरे लेवल का सिलेक्ट करता हूँ। बच्चों के दिमाग में प्रिंट हो रहा है कि मुझे भी ऐसे कुछ करना है, मुझे भी टीवी देखना है। तो अगर हम उसके साथ योगा का उसको एक अध्याय जोड़ दें कि नहीं, शाम को हम कंपल्सरी योगा करेंगे, इवनिंग में अपने घर में जैसे हम पूजा करते हैं, दिया बत्ती लगाते हैं, अपने अपने रिलीजन में जो करते हैं, कैंडल आप ये कर दें। तो आप एक ओम का स्टिकर मिलता है रेडियम के साथ, रेड कलर का, उसमें आप देख के थोड़े से लाइट बंद करके आप उसकी तरफ देखो तो खुद ब खुद उसका इफेक्ट मन में आता है। हम्म, हम्म, आपको कोई एक आध नंबर रिपीट करना है तो वो कर सकते हैं, जिसके कारण यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर माइंड। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मोमेंट यू कीप योर आइज क्लोज, 100 ऑफ थॉट्स एंटर्ड इन योर माइंड। बड़े बड़ों से नहीं होता है तो बच्चों से कैसे होगा। तो हमको उनको लेके हाथ पकड़ के सिखाना है और फिर छोड़ देना है। हम्म, बट हमको लगता है कि यो जो यूथ है सशक्त बनने चाहिए, कैसे बनेंगे, हम्म, उन्होंने योगा करना चाहिए, कैसे करेंगे, हम करते हैं क्या? नहीं, तो फिर बच्चे कैसे करेंगे? हम क्या खाते हैं? हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम डोमिनोज से ऑर्डर दे के खा रहे हैं, हम्म, हम जंक फूड खा रहे हैं। क्योंकि बच्चों ने देखा कब, घर में लाया तो ही देखा ना। हम्म, बड़े करेंगे वो उसको फॉलो करेंगे, तो अच्छी चीज़ हम करेंगे। क्योंकि आज हम वो बीज बो रहे हैं, जो हम बोएंगे वही हमको मिलेगा बिल्कुल। आगे जनरेशन में और ये नेशन के लिए। हम्म, तो हमको चाहिए कि सबसे पहले हम उसको करें। हम्म, हम एक
तय कर ले कि आज हमको 5 मिनट 10 मिनट डेली इसमें करना है, फिर धीरे धीरे एक दो योगा के ये करना है, फिर थोड़ा थोड़ा उसको एक आधे घंटे का भी सेशन डेली मॉर्निंग या इवनिंग में, मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि सबके पेरेंट्स बिजी है, बच्चे स्कूल के इसमें बिजी। बट डेफिनेटली मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ पेरेंट्स को कि आप आधा घंटा उनके साथ उस बहाने रहेंगे तो। अदरवाइज आज के इसमें तो बच्चा अपने रूम में क्या कर रहा है दे डोंट नो, पेरेंट्स अपने उधर क्या कर रहे हैं, लेट पेरेंट्स आने की है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, दादा दादी गायब हो गए हैं, घर में है ही नहीं। पहले की कहानियाँ कहाँ सुनने को मिलती है, दादा दादी नहीं, नाना नानी नहीं। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा अगर रहता है तो ये हमारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इधर स्कूल की तरफ से, इधर पेरेंट्स की तरफ से, तो फिर वो एक ट्रायंगल पूरा हो जाएगा कि बच्चे को लगेगा कि नहीं, घर में भी योगा ही बोल रहे हैं, कुछ तो भी ध्यान बोल रहे हैं, बैठने के लिए बोल रहे हैं, स्कूल में भी मैडम और सर ये बोल रहे हैं, तो फिर बच्चों को लगता है कि नहीं, ये करने के सिवाय मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली हम उनको क्या कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है उनकी तरफ से उनको खींच के हम एक कंस्ट्रक्टिव पाथ पे उनको रख रहे हैं, जो अपना एक दायित्व बनता है। तो यही एक मैसेज होगा आज के अपने डिस्कशन में कि पहले पेरेंट्स करें, स्कूल में टीचर्स उनके साथ करें, और फिर बच्चों से हम एक्सपेक्ट करें। हम एक्सपेक्ट बच्चों से ज़्यादा करते हैं और करेंगे कुछ नहीं, तो उनको लगता है कि अरे ये तो कुछ नहीं करते। बच्चा बोलेगा आज नहीं, क्योंकि आज तुम्हारा जो है वो बारी है, तुम उसको कमा के खिला रहे हो, बच्चा छोटा है। बट वो बोलेंगे अरे पापा आप तो कभी योगा करते हुए हमको दिखते नहीं, कैसे करना है, योगा करना है तो फिर करना क्या है हमको। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, तो बिल्कुल। यही चीज़ है कि पहले हमको करना है, और फिर बच्चों से हम अगर एक्सपेक्ट करें तो फिर वो सही मायने में हम एक सुदृढ़ भारत की तरफ उनको ले जा रहे हैं, और उसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन भी शेयर कर रहे हैं, ऐसा मुझे आज के दिन में ऐसा ही लग रहा है। यही मैसेज रहेगा सबके। तो एक गुरु की तरफ से हम सबके लिए ये शिक्षा है कि हम पहले योग को अपनाएंगे तो बच्चे अपनाएंगे। सो ज़रूर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑन एक संवाद। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।